हाँ जी बेटे, आप लास्ट क्लास च डिस्कस किया है डाइकॉट एंड मोनोकॉट, है ना। एम्ब्रियो डेवलपमेंट डिस्कस किया सी। आर्टिकल नेम वाज एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर अपने कल डायग्राम्स बनाई सी। कुछ एक स्टूडेंट्स ने ही मैंने डायग्राम सेंड कीतियां ने, बाकी जिन्होंने नहीं कीतियां वो मैंने सेंड कर दियो बेटे, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर अपने डाइकॉट दे अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट करी सीगी एंड अपने मोनोकॉट दे अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट डिस्कस किया सी। हुण एम्ब्रियो लास्ट च कन्वर्ट की दे अंदर होगा, एम्ब्रियो ने तो सीड दे अंदर कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। एक बारी फिर रिव्यू करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द डेवलपमेंट ऑफ द सीड। देखो कल की कीता सीगा, कल आपने कहा सीगा कि जो ओव्यूल एम्ब्रियो सैक है ਇਹਦੇ अंदर ਇੱਥੇ एग है, these are synergids। ਇੱਥੇ एंटीपोडल सेल ਸੀਗੇ, ਇਹ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਜਾਂ 3n ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ एंडोस्पर्म बनाता ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ सिनर्जिड के थ्रू ट्यूब एंटर हुई, ਉਹਦੇ थ्रू ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ठीक है। कल ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਸ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸੈਲਸ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਅਪਰ ਲਾਰਜਰ ਐਂਡ ਸਮਾਲਰ, ਬੇਸਲ ਐਂਡ टर्मिनल सेल। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਲ ਸੈਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਤੱਕ 7 to 8 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਿਸਟੋਰੀਅਮ ਐਂਡ ਸਸਪੈਂਸਰ ਸੈਲ, ਨੀਚੇ ਗਲੋਬੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ। ਗਲੋਬੂਲਰ ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਈਕॉट ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੇਟਰ ਔਨ ਦੋ ਕੋਟਿਲਿਡਨਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ रेडिकल प्लेम्यूल ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਯੈਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੋਨੋਕॉट ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਨੋਕॉट ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਹਾਰਟ ਕਿਉਂ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਟਿਲਿਡਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਨੋਕॉट ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਟਿਲਿਡਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ ਕੋਟਿਲਿਡਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਫੂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਈਡ अगर मैं पूरा डायग्राम ड्रॉ करा तो दिस इज द ओवरी। आप एक राउंड स्ट्रक्चर बनाई, आ ओवरी है, ऊपर स्टाइल स्टिग्मा व्हाटसोएवर, ठीक है। ए मेरे कोल अंदर फ्यूनिकल दे नाल आ इंटेग्यूमेंट्स अटैच्ड ने, आ अंदर ओव्यूल है, ठीक है। दिस वन इज एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक दे अंदर मेरे को पूरा का पूरा हुनो स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, ठीक है। इस जगह पे हुनो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सीड दे अंदर डेवलप होना चाहता है, यानी कि यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियो सैक है ये सीड दे अंदर कन्वर्ट हो गया। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਰ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਰ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਸੀਡ ਦੀਆਂ ਕਵਰਿੰਗਸ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ, ਸੀਡ ਬਣਿਆ। सीड दे बाहर आ सारा दा सारा एम्ब्रियो सैक है जेड़ा, दिस होल विल बी कन्वर्टेड लेटर ऑन इनटू द सीड। क्लियर। साइड ते की सीगा, न्यूसेलस सीगा। न्यूसेलस ज्यादातर कंज्यूम हो जाता है, सब दे अंदर सुक जाता है न्यूसेलस। आप ये कह सकते न्यूसेलस ड्राई अप हो जाता है। जो कुछ प्लांट्स दे अंदर न्यूसेलस है जेड़ा ओदी एक लेयर है जेड़ी ओ बच जाती है, that is called as perisperm। एग्जाम्पल है बेटे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर दे अंदर देखो सीड दे ऊपर, अगर सबने ब्लैक पेपर देखी हुई है तो सीड कोट प्रेजेंट है। जब आप ब्लैक पेपर नु क्रश करते हैं तो विच किते वाइट किते ब्लैक आता है, तो दैट वाइट पोर्शन इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म, क्योंकि ओदे अंदर न्यूसेलस है जेड़ा
ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਡਰਾਈ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਨਰ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਊਟਰ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਕੋਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਕੋਟ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਆ ਇਹਦਾ ਆਊਟਰ ਕੋਟ ਹੈ, ਆ ਇਹਦਾ ਇਨਰ ਕੋਟ ਹੈ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੇਅਰ, ਆ ਆਊਟਰ ਕੋਟ, ਆ ਇਨਰ ਕੋਟ। ਤਾਂ ਸੀਡ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਕੋਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਕੋਟ ਇਹਦਾ ਇਨਰ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਕੋਟ ਇਹਦਾ ਆਊਟਰ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਣੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਬੇਟੇ, that is called as testa. Outer coat made from the outer integument in a seed is called as testa. The inner integument is called as tegmen. Inner integument तो केड़ी लेयर बनूगी, tegmen बनूगी। अंदर की बनूगा सीड। मोस्ट ऑफ द सीड्स दे अंदर आ जिहड़ा न्यूसेलस है खत्म हो जाता है, ड्राई अप हो जाता है, लेकिन कुछ एक प्लांट्स दे अंदर न्यूसेलस दी छोटी जी लेयर है जिहड़ी ओह बच जाती है। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द सीड। कि यह सारा दा सारा ओव्यूल जो ये इंटेग्यूमेंट्स ने, जो अंदर एम्ब्रियो बनया, ये पूरा दा पूरा ओवरी दे अंदर जो आप ओव्यूल कहने हैं, वो पूरा दा पूरा ओव्यूल की दे अंदर कन्वर्ट हो गया, सीड दे अंदर कन्वर्ट हो गया। दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सीड। कि जो ओव्यूल सीगा उन्हें लेटर ऑन की बनाता, उन्हें लेटर ऑन सीड बनाता। यस, तो हुण आपां देखदे हां व्हाट डज आवर बुक सेज टू अस। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोस्पर्म दे अंदर बेटे जो जाइगोट है उन्हें पहला एम्ब्रियो दे अंदर अपने आप नू कन्वर्ट किया, फिर उस तो बाद एम्ब्रियो है जिहड़ा इहदे नाल इस तो पहले की डेवलप होया सीगा, एंडोस्पर्म। अगर मैं कल दी क्लास च दसदा सीगा कि जिहड़ा एंडोस्पर्म है वो डाइकोट्स दे अंदर पूरी तरह यूज अप हो जाता है, इस करके डाइकोट्स नू आपां एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस कह दिंदे आ, क्योंकि उहदा सारा फूड रिजर्व फूड है जिहड़ा ओहदियां दोनों कोटिलिडन्स दे अंदर आ जांदा है, लेकिन मोनोकॉट्स दे अंदर वो एल्ब्यूमिनस हुंदा है। न्यूसेलस है जिहड़ा वो जनरली ड्राई अप हो जाता है, बट इन सम केसेस अगर एंडोस्पर्म दे नाल अपने एक थिन लेयर बनती है, ठीक है, न्यूसेलस दी, तो दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। जो आउटर इंटेग्यूमेंट है बेटे वो एक हार्ड सीड कोट फॉर्म करती है जिन्हों आप टेस्टा कहने आ। इनर इंटेग्यूमेंट है जिहड़ी ओह एक थिन कोट बनाती है जिन्हों आप टेगमन कह दिंने आ। जिहड़ा माइक्रोपाइलैंड है ओह अपने कोल की बन जाता, एक फाइन पोर दे अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ते फ्यूनिकल एक स्टॉक बन जाता है। देखो किसी भी अगर आप मटर के दाने नूं छिलदे आ, मान लो आह एक मटर का पूरा पॉड है, पी पॉड, मैं इनू खोलिया तो देखो जिथे मेरे सीड्स ने, सपोज इधर सीड अटैच है, तो यह फ्यूनिकल ही है जिहड़ी ओहदी अटैचमेंट च हेल्प करती है। जदों आपां इनू फ्यूनिकल तो तोड़दे हैं तो उत्थे एक स्कार मार्क दिखता है। घर अज सारे अपने घर एक कोई भी वाइट या ब्लैक चना जो भिगोया होया होए जनरली वो देखियो, या ड्राई दे अंदर भी दिखणगे। तुहानूं एक चने दे उपर कुछ एवें दा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਚਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ दैट इज द ਡਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਕਰੋਪਾਈਲਰ ਐਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਹੈ ਫਿਊनिकल है, उस तो बाद अपने को नेक्स्ट ਇਹਦੀ बाकी सारी सीड ਦੀ स्ट्रक्चर है ਜਿਹੜੀ ਉਹ दिखती है। क्लियर, तो इंटरनल पार्ट किहदे अंदर कन्वर्ट हो गया, सारे का सारा सीड दे अंदर कन्वर्ट हो गया। माइक्रोपाइल एंड रिमेन इन द फॉर्म ऑफ ए फाइन पोर ऑन द सरफेस ऑफ द सीड एंड फ्यूनिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्टॉक ऑफ द सीड। क्लियर है बेटे, तो ये सारा का सारा की बन गया, सीड बन गया। सीड दे अंदर अपन ने की पार्ट कहा कि जिहड़ा ओव्यूल है वो पूरा दा पूरा किहदे अंदर कन्वर्ट हो गया, सीड। सीड दे बाहर दो कोट ने, आउटर टेस्टा, इनर टेगमन। ठीक है, ओके, टेस्टा एंड टेगमन। आउटर इंटेग्यूमेंट तो बनया टेस्टा, इनर इंटेग्यूमेंट तो बनया टेगमन। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। क्लियर, हुण देखो बेटे आ मेरे को एक डेवलपमेंट ऑफ सीड हो गया। ठीक है, सीड तो बाद की बनूगा, सीड तो बाद की बनना चाहिए, फ्रूट फॉर्मेशन। एक चीज याद रखनी है, सम ऑफ द तुसी देखते हो फ्रूट्स दे अंदर, वैसे मैं इस तो बाद कवर कर दिया बट स्टिल आई वांट टू क्लियर,
2 टाइम्स। देखो आ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ स्ट्रक्चर बिगनिंग तो डिस्कस कर रहे हैं, मैं इको ही ओव्यूल बनाया है। इको ही ओव्यूल मतलब इको ही सीड बनूगा, लाइक इन केस ऑफ द मैंगो, मैंगो के अंदर इको ही सीड है ना। देखो अगर मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट द मैनी सीड्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। जिवें आपां सिट्रस फैमिलीज के अंदर देखते हैं, जो आप नींबू नूं या ऑरेंजिस नूं कटते हैं तो उहदे अंदर आपां नूं कई सीड्स मिलते, इहदा मतलब उन्नियां ही पोलन ट्यूब्स गईयां, उन्ने ही ओव्यूल्स नूं उन्हां ने हिट कीता एंड मैनी नंबर ऑफ द सीड्स विल बी देयर। तो ये डिपेंड करता है कि उहदे अंदर किन्ने ओव्यूल्स ने ते किन्ने सीड्स बनणगे। एक ओव्यूल है तो एक सीड दी फॉर्मेशन है जिहड़ी ओ होगी, ठीक है। हुण आओ बेटे, आ मेरी ओवरी है, आ मेरे कोल की है बाहर, आ ओवरी है, आ मेरे कोल अंदर सीड दी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। हुण जिहड़ा सीड दे बाहर वाली स्ट्रक्चर है, आ स्ट्रक्चर, आ वाला पार्ट, आ ओवरी दी आउटर वॉल है, डार्क पेन दे अंदर है जिहड़ी बेटे, दिस इज द आउटर वॉल ऑफ द ओवरी, ठीक है। आ मेरी सीड दी कोटिंग होगी। देखो सीड दी कोर्स हार्ड हुंदे ने ना, आपां किसी भी सीड नूं ब्रेक करते हैं तो इजीली ब्रेक नहीं हुंदा हैगा, है ना। आ जिहड़ा इन्हां दे अंदर स्पेस है ना, इस स्पेस पहले स्पेस घट हुंदा है। देखो आपां कच्ची अंबी हुण आ रही होणगीआं, तुसीं सारे देखियो तां इनिशियली सीड बड़ा हुंदा है, पल्प छोटी हुंदी है, लेकिन जिवें जिवें ओही मेरा रॉ मैंगो ही कंप्लीट राइपेंड मैंगो दे अंदर कन्वर्ट हुंदा है, जिवें जिवें वो राइपेंड मैंगो दे अंदर कन्वर्ट हुंदा है, तां सीड ते आउटर वॉल ऑफ द ओवरी जो कि फ्रूट दी कवरिंग बनी है लेटर ऑन, ਉਹਦੇ अंदर पल्प फिल होना शुरू हो जाता है, ਉਹ पल्प राइपन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस जगह पे पल्प फिल होना स्टार्ट हो जाता है, दिस विल गिव राइज टू द फिलिंग ऑफ द पल्प। ਉਹ पल्प हौली हौली मैच्योर ਹੁੰਦੀ है ਤੇ ओवरी दी आउटर वॉल है ਜਿਹੜੀ ਉਹ फ्रूट दी आउटर वॉल ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛਿਲਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, that is pericarp ਦੇ ਅੰਦਰ convert ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। the outer wall of the fruit is called as the pericarp, clear। फिर उस तो बाद this midway is called as the mesocarp, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ pulp ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, mesocarp। जो सीड ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ that is called as the endocarp, ठीक है। this is mesocarp, markers, mesocarp and the inner is called as जो सीड ਦੇ ਨਾਲ टच करी that is called as endocarp। एक मैं चैप्टर ਦੇ बिगनिंग ਚ शायद ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा अकेडमी ਚ एक चीज डिस्कस करी सी, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। मैं शायद ये भी दसिया सीगा कि इट इज हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुण ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਉਹਦੀ पूरी ਆਪਾਂ तय तक चलते हैं कि वो इंपॉर्टेंट ਤੇ ਉਹਦਾ मेन बेसिक रीजन की है। देखो आ ओवरी है, ओवरी दे नीचे आ मेरे को अगर आप फ्लावर नु डिस्कस करिए तो ओवरी दे नीचे थैलेमस प्रेजेंट होती है ना। ओवरी दे नीचे की प्रेजेंट है, थैलेमस प्रेजेंट है। थैलेमस दे ऊपर ओवरी है जेड़ी ओ प्रेजेंट है, दिस इज थैलेमस। थैलेमस के ऊपर ओवरी प्रेजेंट। अगर सिर्फ ओवरी तो ही फ्रूट बन रहे हैं, मतलब दिस पार्ट इज ओनली एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रू फ्रूट। व्हेन ओवरी इज ओनली एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट, such kind of the fruits are called as the true fruits, ठीक है। जिवें मैंगो, कुकुम्बर, these are the true fruits। false fruit की हुंदे बेटे जिन्हां दे अंदर प्लांट दे फ्लावर दे होर पार्ट्स लाइक थैलेमस हो गया या ओदे कोई होर जेडे साइड ते एसोसिएटिव स्ट्रक्चर्स ने ओ नाल इंक्लूड हो जान फ्रूट फॉर्मेशन दे, such fruits are called as the false fruits, ठीक है। ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हुण आपां देखदे हां बेटे फ्रूट फॉर्मेशन, व्हाट इज द फ्रूट फॉर्मेशन। तो अपने को ट्रू फ्रूट है जिहड़ा बेटे वो की है, सेल डिवीजन है। ऑब्वियसली इत्थे सेल्स पहले घट सीगे, सेल्स डिवाइड होए, फिर उन्हां सेल्स दे अंदर राइपनिंग होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। हार्मोनल इफेक्ट्स भी आए, जिवें आपां हार्मोन्स इन प्लांट्स दे अंदर पढ़े, थाइलिन आया, उन्हें फ्रूट दी राइपनिंग उन्होंने मिठा बनाने च भी हेल्प किया। ऑल्दो बाकी प्रोसैसेस भी नाल नाल चलणगियां, बट आवर बेसिक इज कि फ्रूट फॉर्मेशन किवें होई, ठीक है। इस टाइम पे
ਤਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਨੇ ਓਵਰੀ ਐਂਡ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਸ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਓਵਰੀ ਦੀ ਆਊਟਰ ਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੈਰੀਕਾਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੈਰੀਕਾਰਪ ਲੇਟਰ ਔਨ ਫਰੂਟ ਦੀ ਵਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਫਰੂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਟਰੂ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਫਾਲਸ ਫਰੂਟ। ਟਰੂ ਮਤਲਬ ਯੂਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਓਵਰੀ ਤੋਂ। True fruit is also called as the eucarp, and false fruit is also called as pseudocarp. Pseudo मतलब false, ठीक है, मतलब ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ovary ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ parts ਵੀ associated ਨੇ, ठीक है। तो that is the true fruit and false fruit, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ now the branch of the horticulture that deals with the study of the fruits and their cultivation is called as the पोमोलॉजी। क्लियर। इस तो बाद है बेटे अपने कोल कुछ है कि पॉलिनेशन, रोल ऑफ पॉलिनेशन इन फ्रूट डेवलपमेंट, कुछ एसोसिएटिव डेफिनेशंस ने। हुन वो डेफिनेशंस दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट बट वी जस्ट वांट टू डिस्कस देम। पॉलिनेशन दा की रोल, अगर पॉलिनेशन ही नहीं होगी तो की फ्रूट बन सकता सीगा, नो, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुंदी। तो अगर आप एक ट्रू सीक्वेंस के अंदर चल रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन तो बिना फ्रूट फॉर्मेशन नहीं हो सकता। रोल ऑफ द सीड्स इन द फ्रूट डेवलपमेंट, यस सीड्स का भी रोल है, सीड्स बननगे ताई ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ नेक्स्ट जनरेशन भी तो लॉक्ड होगी, ठीक है। एक डेफिनेशन हो रहा है पार्थिनोकैरपी, वो मैं लेटर ऑन दस दी है। एक है राइपनिंग, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट के अंदर एज आई टोल्ड यू अर्लीयर कि इथाइलिन नाम का हार्मोन है जेड़ा और राइपनिंग ऑफ द फ्रूट के अंदर हेल्प करता है। आप +1 के अंदर एक चैप्टर पढ़िया सीगा हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर पढ़िया सीगा। तो उत्थे आपां इथाइलिन का रोल भी पढ़ के आए सीगे। तो फ्रूट की राइपनिंग के अंदर देखो एक चैप्टर है जिहड़ा ओहदे कई पार्ट्स आपां इधर उधर भी पढ़ते हैं। तो इथाइलिन इज द हार्मोन जो फ्रूट की राइपनिंग ते ओहदी स्वीटनेस के अंदर हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट है बेटे एक छोटी जी डेफिनेशन है, वो आपां डेफिनेशन पहले पढ़ी है, पोलन वायबिलिटी पढ़ी सी आपां डेफिनेशन। इफ यू रिमेंबर तो मैं पोलन वायबिलिटी दे अंदर एक वर्ड यूज किया सीगा कि एक पोलन ग्रेन उड़न तो बाद कितनी देर तक अपनी कैपेबिलिटी नु कायम रखता है कि मैं जर्मिनेट करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज पोलन वायबिलिटी। सिमिलरली I have is another definition that is seed viability. Seed viability word का मतलब की है कि एक सीड है जेड़ा, हुण देखो सारे सीड्स आप हर बार तो जर्मिनेट नहीं करते ना, सारे कुछ सीड्स स्टोर्स के अंदर चले जाते हैं, पैकेट्स के अंदर कई सालों तक बंद रहते हैं। तो एक सीड कितने समय तक अपनी पावर नु रिटेन रखता है, दैट इज एबिलिटी of a seed to get germinate। जदों उन्होंने अपनियां सारियां कंडीशंस मिलनगियां, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग इट विल गेट, इट विल जर्मिनेट। बट कुछ सीड्स ने जेड़े ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟੋਰਡ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, that period is called as dormancy, ठीक है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ नहीं कर रहा, तो dormant हो गया। dormant मतलब inability to germinate, this is ability to germinate, inability to germinate। कुछ seeds dormancy तो बाद भी, ਜਦੋਂ मान लो एक साइंटिस्ट हाँ या मैं फार्मर हाँ, मेरे सीड्स डोरमेंट हो गए, मैं उन्होंने कुछ कैमिकल ट्रीटमेंट दूंगी, मैनू आई नो कि आ कैमिकल्स दे अंदर सीड्स नू अगर मैं रख दूंगी तो अगर वो डोरमेंट हो गया तो वो जर्मिनेट कर जू। कुछ सीड्स मान लो मैं 10 सीड्स, मेरे को 20 सीड्स ने, 20 चो 10 तो मेरे एवं जर्मिनेट हो गए, रिमेनिंग 10 नू मैं कैमिकल ट्रीटमेंट दिता, उन्हें 10 चो 5 जर्मिनेट हो गए जो कि डोरमेंट सीगे, वो जर्मिनेट हो गए। बट रिमेनिंग 5 ने जेड़े वो कंप्लीटली डोरमेंट ने, वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। यानी कि एक सीड दी पावर कि वो कितने टाइम तक भी जर्मिनेट कर सकता है। वायबिलिटी ऑफ ए सीड रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिटेन द पावर ऑफ द जर्मिनेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो डिफरेंट सीड्स दी डिफरेंट पावर्स होंदियां ने बेटे, डिफरेंट एबिलिटीज ने। कुछ सीड्स ने जेड़े 2 to 5 ईयर्स, मतलब मोस्टली जेड़े क्रॉप प्लांट्स होंदे ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਡਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਟ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਔਰ ਅਪ ਟੂ 5 ਇਅਰਸ, ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਸਪਰਾउट्स ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। लेकिन कई बारी नहीं भी बन पाते तो दैट इज देयर इनएबिलिटी, डॉर्मेंसी चला गया। तो 2 to 5 इयर्स आर जनरल ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ नॉर्मल ग्रेन सीड्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਜਰਮੀਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ दैट इज एबिलिटी टू जर्मिनेट, एबिलिटी टू रेस्पायर कि ਉਹ सीड ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, दैट इज कॉल्ड एज द ability of a seed to get germinate। dormancy मतलब inability of a seed to get germinate। दो different definitions ने, and these are important definitions according to examination point of view। dormancy as well as seed viability both are important definition, ठीक है, according to your examination point of view, ठीक है। तो सीड वायबिलिटी 2 मार्क्स और डॉर्मेंसी 1 मार्क के अंदर पूछा जा सकता है, तो इन्हां दी डेफिनेशंस नु अकॉर्डिंगली लर्न कर। हुण मेरे को बेटे 3 डेफिनेशंस ने साइमल्टेनियस एंड दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। वन इज पार्थिनोकैरिपी, पार्थिनोकैरिपी। सेकंड इज एपोमिक्सिस। Third one is polyembryony। Last article of the chapter है, then the chapter will be finished off। इस तो बाद तुसी अपने doubts clear करने हैं बेटे। polyembryony, पार्थिनोकैरिपी की है। मैं विच एक definition ਜਦੋਂ एक्स्ट्रा definitions करा रही सी उदों आई भी सी, मैं उदों लीव करता सीगा, हुण आपां डिस्कस करांगे। देखो आ ओव्यूल है, याद है ता सब नु हुणे ही डिस्कस करके हटे है ना। दिस इज ओव्यूल, दिस इज दीज आर सिनर्जिड्स एंड दिस इज द एग सेल। ये मेरा पोलर न्यूक्लियाई 3n हो गया, ये मेरे एंटीपोडल सेल्स। पार्थिनोकैरिपी की है फॉर्मेशन ऑफ द सीडलेस फ्रूट्स, ठीक है, मींस फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब इस एग नू कोई मेटिंग पार्टनर एदी फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, ये डायरेक्टली फ्रूट दे अंदर कन्वर्ट हो गया। किवें, लेट्स से मैं कोई हार्मोन या कोई केमिकल ट्रीटमेंट दिता इस एग दे अंदर ते ये डायरेक्टली फ्रूट दे अंदर कन्वर्ट हो गया, सीड बनया ही नहीं हैगा। सीडलेस फ्रूट्स दी फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज द पार्थिनोकैरिपी, means the formation of the fruit without fertilization, ठीक है। देखो इट्स रॉन्ग है ना, आजकल यही हो रहा है, इंजेक्शंस इंजेक्टेबल्स देना ते वो फ्रूट दे अंदर कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज द पार्थिनोकैरिपी। दोनों मेथड्स नाल हुंदे, कुछ प्लांट्स दे अंदर ये नेचुरली भी हुंदे, बाकी आर्टिफिशियली मतलब जदों ह्यूमन इंड्यूस करदा है बाय द हेल्प ऑफ द केमिकल्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पार्थिनोकैरिपी, ठीक है। तो पार्थिनोकैरिपिक फ्रूट्स केड़े हुंदे ने, सम प्लांट्स ने जेड़े दे आर एबल टू प्रोड्यूस द फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज द सीडलेस फ्रूट्स, ठीक है। जिवें कि बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, या सिट्रस फैमिली दे अंदर जेड़े फ्रूट्स आ जांदे ने वो आ जाते हैं, तो दैट इज द पार्थिनोकैरिपी। बनाना दे अंदर तो नेचुरल मैथड है, लेकिन आजकल कुछ ग्रेप्स आ रहे हैं जिन्हां दे अंदर सीड नहीं हुंदा, तो दैट इज आर्टिफिशियल पार्थिनोकैरिपी। जदों ह्यूमन हार्मोन्स या कैमिकल्स दी हेल्प दे नाल ओव्यूल तो फ्रूट डेवलप करदे, दैट इज कॉल्ड एज द पार्थिनोकैरिपी, ठीक है। हुण देखो, हुण कई बच्चे एपोमिक्सिस ते पार्थिनोकैरिपी च कंफ्यूजन हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम ही है बट सिर्फ एक कोई डिफरेंस है। देखो पार्थिनोकैरिपी दे अंदर मैं की किया, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्म होना इज कॉल्ड एज पार्थिनोकैरिपी, एंड सच फ्रूट्स आर कॉल्ड एज पार्थिनोकैरिपिक फ्रूट्स, क्लियर। एपोमिक्सिस की है, एपोमिक्सिस इज अगेन
विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड दी फॉर्मेशन होना। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड जिहड़ा है वो लेटर ऑन की बना दूगा, फ्रूट तो बनाऊगा ही बनाऊगा ना। दैट इज कॉल्ड एज द एपोमिक्सिस। द एपोमिक्सिस की हो गया, we have is the development of the reproductive propagules without syngamy is termed to be as the apomixis। क्लियर है बेटे? दैट इज एपोमिक्सिस, यानी कि सेम स्ट्रक्चर है आही एज इट इज। वी हैव इज टू synergids and this is the egg cell, same antipodals and polar nuclei। दिस एग मैंने कोई केमिकल ट्रीटमेंट दिता, इन्हें बिना फर्टिलाइजेशन तो इन्हें कोई वेट नहीं की कि मेल गैमीट विल कम, इन्हें इत्थे एम्ब्रियो तो बाद सीड बनाना स्टार्ट करता। दैट इज कॉल्ड एज द एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस के अंदर है बेटे अपने को है वी हैव इज द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। The formation of the embryo directly from a diploid sporophytic cell is called as the adventive embryony। मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पार्थिनोजेनेसिस आप कर चुके हैं हुणे ही। एंड वी हैव इज द एपोस्पोरी और एपोगैमी, फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम एनी अदर सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेल। देखो इन्हें फर्दर डिवाइड करता टाइप्स के अंदर। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, सेम है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव मैं बाद दोबारा सारे डिस्कस कर दिया। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, पार्थिनोकैरपी हो चुकिया तो मैं नहीं लिख रही, ऊपर ही लिखा हुआ है। थर्ड वन इज एपोस्पोरी। ध्यान ਨਾਲ समझना बेटे, एपोस्पोरी और एपोगैमी। देखो पॉली एम्ब्रियोनी एंड रबेमिट, इत्थे ध्यान ਨਾਲ देखो। एपोमिक्सिस के अंदर की सी बेटे, दिस इज द स्ट्रक्चर, synergid egg, antipodals 3n, these are integuments। this is the complete structure। एपोमिक्सिस कहता है कि इस एग तो बिना फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड या एम्ब्रियो दी फॉर्मेशन होना। जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है ना, एक ही कहता है समटाइम्स, क्योंकि ਆਪਾਂ ने की पढ़िया सीगा इथे न्यूसेलस प्रेजेंट है। हजे तक तो वो स्ट्रक्चर ओव्यूल ही है ना, एम्ब्रियो सैक है, हजे तो ਉਹਦੇ अंदर सीड बनया ही नहीं, हजे तक तो इट इज वेटिंग फॉर द मेल पार्ट टू कम। सम टाइम की अंदर सम प्लांट्स दे अंदर जिहड़े न्यूसेलस वाले सेल्स ने ना, दे स्टार्ट्स टू डिवाइड mitotically and they will divide mitotically and enter over here adventive embryo and they fuse to form the seed। ये आपे zygote, क्योंकि है ही 2n, they act like a zygote, इत्थे आके zygote दी तरह act करेंगे and they will form the embryo and later on form the seed। then हमें मेल दी तरह जरूरत ही है। that is adventive embryo। देखो एपोमिक्सिस दे अंदर दो मेथड्स ने। एपोमिक्सिस दे अंदर एक मेथड है कि मेरा ओव्यूल दे अंदर जो मेरा एग है उन्हें बिना फर्टिलाइजेशन तो सीड बनाता, सिंपल मेथड, क्लियर। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी की कहती है कि जो मेरा न्यूसेलस सी, क्योंकि हजे तक न्यूसेलस डैमेज ही नहीं होया ना, हजे तक कुछ होया ही नहीं, हजे तक बिल्कुल बिगनिंग वाली स्ट्रक्चर है, ओव्यूल ही तैयार होया, मेगास्पोरोजेनेसिस हुई है। ਜਿਹੜੇ न्यूसेलस ਦੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇਹ ਅਬਰਪਟਲੀ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर हो जाते and they will act like a embryo and later on they will form the seed। that is called as adventive embryony। ठीक है,
Adventive embryony is the formation of the embryo directly from the diploid cells of the nucellus, that is called as adventive embryo. Clear? Epospore, epospore की कहंदा बेटे आ जेडे बाकी सेल्स ने synergid, antipodal, this is synergid, जदों ਇਹ भी सीड बनाने च इन्वॉल्व हो जान, that is called as एपोस्पोरी. मतलब कोई भी cell of the ovule can make the seed. Clear? Any cell, कोई भी मतलब any cell can make the seed. Formation of the embryo from any other cell of the embryo sac other than the egg without fertilization is called as the एपोस्पोरी. Clear है? एपोमिक्सिस की कहा, पहला तो पार्थिनोकैर्पी की कहा, सिंपल मैथड है, मैं कोई इंजेक्शन लगाया, मैं इलीगल काम किया, मैं जी ओवरी है ਉਹਦੇ अंदर इंजेक्शन लगाया, फ्रूट बनाता, जिवें आजकल हुंदा है ना कि बड़े बड़े फ्रूट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज पार्थिन. नैचुरली भी हो सकता है, आर्टिफिशियली, सीडलेस फ्रूट दी फॉर्मेशन होना. एपोमिक्सिस की किया, इथे तो फ्रूट सीगा, इथे सीड है, जदों तो एग तो सीड बनया तो एपोमिक्सिस है, बिना फर्टिलाइजेशन तो. एडवेंटिव जदों न्यूसेलस ने 2n सेल ने एम्ब्रियोज बनाने शुरू करते. एपोस्पोरी जदों कोई भी सेल इन्वॉल्व हो गया, दैट इज एपोस्पोरी. सिंपल 3 टर्म्स आर देयर. हुन आ जाओ बेटे थर्ड एंड द लास्ट डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी. पॉलीएम्ब्रियोनी, थर्ड डेफिनेशन इज पॉलीएम्ब्रियोनी. वैसे नाम तो क्लियर है, पॉलीएम्ब्रियोनी. पॉली मतलब मैनी, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियोस, मैनी एम्ब्रियोस. पॉली एम्ब्रियोनी. देखो आहा की होया, these are synergids, this is egg. सेम डायग्राम चल रही है. मान लो इथे एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, एम्ब्रियो बन गया. पॉलीएम्ब्रियोनी इज द फॉर्मेशन ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सीड. इथे एम्ब्रियो बन गया, ओ एम्ब्रियो की है मोर देन वन सेल्स है ना, कोई भी सेल है वो एम्ब्रियो च कदों कन्वर्ट होया, फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है, या फर्टिलाइजेशन नहीं हुई. ਆਪਾਂ कंसीडर कर रहे हैं सारे मेथड है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ विदाउट फर्टिलाइजेशन. ਇਹ ਐਗ ਨੇ ਨਾ ਜੀ नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ਜਿਹੜੀ ਉਹ बना ली बिना फर्टिलाइजेशन, तो एम्ब्रियो तैयार करता. एम्ब्रियो मतलब ग्रुप ऑफ द सेल्स आर हियर, आर ए ग्रुप ऑफ द. ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ सेल्स अलग-अलग हो जाਣ, these all cells will be differentiated. ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ अलग-अलग सीड तैयार करांगे. this is called as polyembryon. Many embryos will be together, ठीक है. तो सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब ड्यू टू फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो भी सकती है. मैं पहले किया पॉलीएम्ब्रियोनी है जेड़ा ਉਹਦੇ अंदर फर्टिलाइजेशन हो भी सकती है, पर ਆਪਾਂ क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं सारे मेथड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है. तो पॉलीएम्ब्रियोनी अगर तक फर्टिलाइजेशन तो बाद एम्ब्रियो बनया सीगा तो ਉਹਦਾ सेपरेट होना, दैट इज सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी. बट अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन भी होया है तो दैट इज कॉल्ड एज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी. और अगर किसी होर सेल्स तो एम्ब्रियो बन गया, मतलब इन्हां चों किसी भी सेल ने इन्हें तो बनाया ही बनाया एम्ब्रियो, ये कहना मैं भी एम्ब्रियो बनाऊंगा. एंटीपॉडल्स कहते असी भी एम्ब्रियोज बनावांगे, तावी ता वो की हो गया, पॉलीएम्ब्रियोनी हो गया. ठीक है जी. सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स फर्टिलाइजेशन हुई, देन एक एम्ब्रियो तो कई एम्ब्रियो बन गए, सिंपल पॉलीएम्ब्रियो. फिर है मेरे को क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, विदाउट फर्टिलाइजेशन चाहे एम्ब्रियो बनया, वो एम्ब्रियो क्लीव हो गया, उन्हें बहुत सारे सीड्स बना दी. ठीक है. थर्ड इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, कोई भी एडिशनल सेल भी एम्ब्रियो बनाने यूज अप हो गया, दैट इज कॉल्ड एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. इन्हां दा फायदा कित्थे है? इन्हां दा बेटे फायदा हुंदा है हॉर्टिकल्चर दे अंदर, नवे नवे प्लांट्स दे सीड्स बनाने दे अंदर इन्हां दा बेनिफिट हुंदा है. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एपोमिक्सिस. ऑब्वियसली ये हॉर्टिकल्चर दे रिसर्च मैथड्स ने, तो आप सीडलैस फ्रूट्स बना सकते हैं. जिवें देखो वाटरमैलन है, ਉਹਦੇ अंदर बहुत सारे सीड्स हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुंदी है ना सीड्स करके,
ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਆਰ ਸਰਚਿੰਗ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ that is these are the 3 important definitions according to the examination point of view: parthenocarpy, apomixis and polyembryony। ਤਾਂ ਹੁਣ confuse ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ between the parthenocarpy and apomixis। पॉलीएम्ब्रियोनी भी ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ, बट पॉलीएम्ब्रियोनी ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਚੁਰਲ मतलब फर्टिलाइजेशन हो भी सकती है और बिना फर्टिलाइजेशन तो मतलब पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब मैनी नंबर ऑफ द एम्ब्रियोज, ठीक है। मैनी नंबर ऑफ द एम्ब्रियोज मतलब मैनी नंबर ऑफ द सीड्स विल बी देयर, ठीक है। तो दैट इज द पॉलीएम्ब्रियो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटे। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਦਊਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ watch out your all videos and prepare for the test। मैं टेस्ट ग्रुप के अंदर अनाउंस करूँगी। probably up to pollination I'll take the test on Monday, ठीक है। tomorrow I'll give you the day for the revision, okay, and Sunday for the learning process, ठीक है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਾਊਟ ਡੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਓਕੇ।